let's wait for other people to join, and after that we'll start. Okay. In the meantime, just confirm my voice is clear. My video, is it clear? You can unmute and say. It's blur for me. Okay, let me stop and now it is clear, right? Yeah, I can see that it's very clear. Yeah. Yeah, it's clear. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you are able to see me, right? Jameel Ahmed Khan. My video is clear, Jameel. My audio, what about audio and video? Please unmute and confirm. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, it is pretty much clear. I Thank am, you. you are audible to me. Good. Okay. Let's wait for other people to join. We'll give 5 minutes. Okay, okay, no issues.
Thank you. Thank you. Thank you so much for joining this webinar. We'll give another 4 minutes. Let's other people to join. 4 मिनट देंगे, उसके बाद हम webinar start करेंगे. Okay, let's wait for other people to join. In the meantime, you can write down your questions, anything related to improving the communication, like grammar, vocabulary, pronunciation, or anything. Okay. Whatever questions you have, you can write it down. आप लिख लीजिए questions, and at the end of the webinar, we are going to have 15 minutes, at least a 15 or 10 minutes question and answer session. Okay. If you have any question, you can pose the question, and I'm very happy to answer them. Okay. Moin, thank you so much. ठीक है, इंशाल्लाह जरूर. I will try to speak in Urdu. We'll continue in Urdu. Okay. उर्दू में ही हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे. चलिए, let's start the webinar. Let me just quickly share the screen. Before we begin, आप थोड़ा सा confirm कीजिए, my audio and my video is very clear, right? Unmute and say. Unmute कीजिए और बताइए, my voice and my video. Is that clear? Yes, sir. Yes, it is pretty much clear, fine, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. चलिए, I'm gonna share the screen now. Let me share the screen. Okay. So webinar start करने से पहले a quick introduction about the webinar. आज क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, पहले वो देखते हैं. ओके. आज के इस वेबिनार में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन विद न्यूरोसाइंस टेक्निक्स. ओके. बगैर रूल्स मेमोराइजेशन किए के हम कैसा अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके. एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. ओके. एक आदमी प्रोनाउंसिएशन सीखता कैसा नेचुरली, उस पर हम फोकस करेंगे. ये साइंस टेक्निक्स है. ओके. एंड इसके साथ हम एट द एंड आपको 2 बोनसेस देने वाले हैं, व्हिच इज एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार. ओके. एंड दिस इज अ हाई लेवल ओवरव्यू. हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि आज के इस वेबिनार में कौन कौन सी चीजें कवर होने वाली है. पहली चीज है why your brain secretes you blocks your from pronunciation correctly. आपके ब्रेन के अंदर वो कौन सी चीजें हैं आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने से रोकती है. what are the blockers. ठीक है, वो चीज सीखने वाले हैं. दूसरी चीज 3 neuroscience secrets to rewire your complete speech. देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी ऑटोमेटिकली नेचुरल इंग्लिश बोले और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वो नेचुरल सीखे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये है, इसके अंदर हम 3 न्यूरोसाइंस सीक्रेट्स बताने वाले हैं. वो हेल्प करेगा आपके ब्रेन को रिवायर करने में.
Okay, and the third is master pronunciation using brain friendly learning. ये जो प्रोसेस हम सीखने वाले हैं न्यूरो साइंस टेक्निक का, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक आदमी लैंग्वेज सीखता कैसा, उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, नॉट अ टुडेज लर्निंग फॉर्मेट जो भी है ना, जैसे कि बस आपको रटना पड़ेगा, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से ये न्यूरो साइंस टेक्निक बताया जाएगा, एंड इट इज वेरी इजी। ओके, एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार यू विल गेट द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसा हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। ये था जस्ट ओवरव्यू। ओके, चलिए अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, मेरा इंट्रोडक्शन और हमारा जो कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हब है, ओके, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज मोहम्मद फहीम, फाउंडर ऑफ कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हब, एंड पिछले 10 साल से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एंड प्रीवियसली आई यूज्ड टू टीच इन मदरसा एंड अदर स्कूल्स। तो पिछले 10 साल में हमने जितने भी टिप्स और ट्रिक्स गैदर किए, और ये न्यूरो साइंस टेक्निक भी हम रिसेंटली डिस्कवर हुआ कि आदमी लैंग्वेज सीखता कैसा, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट माय इंटरेस्ट, माय पैशन इज टू टीच इंग्लिश। ओके, मेरा जज्बा, मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश पढ़ाने में है, स्पेशली कम्युनिकेशन इंग्लिश। ओके, and I'm very excited and very happy to teach communication English. Okay, coming to Confidence Speakers Hub community. पहली चीज तो आप ये जहन में रखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हब है, ये एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट नहीं है। ओके, रिमेंबर दिस। Then what is it? It's a community. Okay, it's a community which will help intermediate students, graduating students, teachers, working professionals, okay, other than school students. Okay, my audience is intermediate students, college going, working professional, and teachers, ulamas. Okay, ये लोग हमारे students हैं, and our mission is to help them speak English fluently and confidently through the power of neuroscience technique. ये हमारा community का मकसद है। ओके, और इसके जैसे ही हमने कम्युनिटी बोला, इसके अंदर कुछ कोर वैल्यूज और कोर प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। ओके, व्हाट आर कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हब कम्युनिटी? डे 1 से हम ये कोर वैल्यूज को स्टूडेंट्स में भी देखना चाहते हैं, और मैं एज ए फाउंडर, वी फॉलो दिस वेरी रिलीजियसली एंड वेरी ऑनेस्ट, very strict to this community rules, core values. The first is active listening. ओके, ये तो हमारी बुनियाद है कम्युनिकेशन सीखने की। सेकेंड है स्पीच लेस थेरापी। व्हाट इज दिस? इंसान को कोई चीज, नया स्किल सीखने के लिए एक रास्ते से गुजरना पड़ता, वो है स्पीक लेस थेरापी। जब बंदा खामोशी से चीजों को गौर करता, तभी उसका सीखने का लेवल बढ़ जाता। This is the second core value what we follow in Confidence Speakers Hub. Third is empowerment through communication. देखिए, जबान एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारा चेंजेस और पॉजिटिव मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो पॉसिबल। जबान एक ऐसी चीज है जो 2 कंट्रीज में वॉर भी हो सकता। जबान एक ऐसी चीज है जो 2 आदमी को लड़ा भी सकता। जबान एक ऐसी चीज है जो 2 आदमी को मिला भी सकता, वार भी बन हो सकता। और ऑब्वियसली आपको तो पता है कि करियर में जितना इम्पैक्ट हमारे कम्युनिकेशन से होता और दूसरे और चीजों से नहीं होता। ओके, इवन इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को ऊपर ही सीखना पड़ेगा। द फर्स्ट प्रेफरेंस व्हाट आई वुड से। ओके, एम्पावरमेंट के अंदर पूरे चीजें आ गए। एम्पावरमेंट थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द थर्ड कोर वैल्यू। द फोर्थ इज नेचुरल एंड साइंटिफिक अप्रोच। हमारा जो पढ़ाने का टेक्निक है वो एक नेचुरल है। ऐसा नहीं कि पुराने बैकडेट एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ रटना 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 रहता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हम कुछ एक्टिविटीज देते हैं जिसमें ब्रेन के आपके न्यूरॉन्स ट्रिगर होते, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसमें। वो नेचुरल प्रोसेस है और साइंटिफिक अप्रोच से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये बात तो आप याद रखिए, ये एआई के जमाने में और इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपको डेली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट होना जरूरी है, जो कि हमारे कोर वैल्यूज में है। लास्ट सेकंड इज डाउन टू अर्थ एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच। मैंने कुछ चीजें देखा स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स में भी देखा और कुछ नए बंदों में भी देखा, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने के बाद
वो लोग के पास एक फखर आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है, एंड दिस इज वेरी बैड। हाँ, द एरोगेंस व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश। जब इंसान को तकब्बुर आ गया, यानी फखर आ गया, यानी दूसरों को कमतर समझना, अपने आप को बेहतर अफजल समझना, ये एक बहुत बुरी आदत है। जैसे ही कोई बंदे में ये आदत आ जाए, वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होता। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से रखना। और ये हमारे कोर वैल्यूज में इसीलिए है कि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने के बाद अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रांग समझने लगते, जबकि लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है। आप 40 डेज स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सीख जाएंगे। ये कोर वैल्यूज इसीलिए है कि अगर आप डाउन टू अर्थ और रिस्पेक्टफुल अप्रोच नहीं है तो समझिए आपको कोई चीज सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, प्रोसेस के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको कुछ प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस जो भी है वो वीक होगा। ऑलवेज यू विल हैव अ ब्लेम गेम। आपको ब्लेम गेम की आदत हो जाएगी। क्यों आप प्रैक्टिस नहीं करें? यू विल थ्रो सो मेनी रीजंस टू इट। ठीक है, अगर कभी भी कौन सी भी चीज आपसे नहीं हो सकी तो यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दैट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द लास्ट core value of our community called confident speakers hub community. Okay, ये थे core values. Coming to 6 problems that student face when it comes to learning pronunciation. 6 बड़े प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस करता when they try to learn pronunciation. चलिए देखते हैं 6 प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम है रूल्स ओवरलोड। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन स्पेशली डिप्थोंग, सिलेबस, फिर उसके ऊपर एक्सेंट भी आएगा, बहुत सारे रूल्स आएंगे जब आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो प्रोसेस है वो नेचुरल है। पहली बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है रूल्स ओवरलोड। किसको कैसा प्रोनाउंसिएशन करना। देखिए, इंग्लिश में एक फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। जैसे कि CUT कट, BUT बट, PUT पट नहीं हो सकता, इट्स पुट, राइट? तो अंग्रेजी में कुछ अजीब, कुछ ऐसे रूल्स है जो हमको कोई रूल में फिट नहीं होता। हमको एक नेचुरल प्रोसेस वे फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, यानी प्रोनाउंसिएशन नेचुरली सीखने के लिए। डू नॉट रिक्वायर टू मेनी रूल्स टू रिमेंबर, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसिव लर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो लोग बताते हैं कि सर, इफ आई डेली लिसन टू स्टोरीज, डेली अगर हम स्टोरी सुनेंगे या नहीं तो इंग्लिश के मूवीज देखेंगे, क्या हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा? द आंसर इज इनकम्प्लीट हियर, बिकॉज आप खाली सुन रहे हैं। ओके, देयर इज अ बैक एंड प्रोसेस। आगे हम बताएंगे कि मिररिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका लर्निंग प्रोसेस पैसिव लिसनिंग में है, जस्ट आप सुन रहे हैं मगर वो ब्रेन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। ओके, ब्रेन तक आपकी आवाज नहीं पहुंच, आप तो सुन रहे हैं, यू आर नॉट एक्टिव लिसनिंग, यू आर जस्ट पैसिव लिसनिंग। ये एक सेकंड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। ठीक है, द थर्ड इज नो फीडबैक लूप। देखिए, एक बात याद रखिए, इंसान का एक प्रोसेस है सीखने का। ओके, पहले वो ट्राई करेगा, उसको मिस्टेक्स होंगे, पक्का, सिर्फ लर्निंग प्रोसेस। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक ह्यूमन बीइंग का एक लर्निंग प्रोसेस है, वो गलती करेगा, गलती को रेक्टिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि चलो सुन लिए, बोल दो, दैट्स इट। हु विल रेक्टिफाई देन? कौन आपके मिस्टेक्स को सुधारेगा? दिस इज अ थर्ड प्रॉब्लम। ओके, प्रैक्टिस विदाउट करेक्शन। अगर आप सीखे और आपके एरर्स का रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग द एरर्स। आप एरर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन? You will go on continuously making the same mistakes if you don't rectify it. ठीक है, this is the third challenge and third problem that students face while learning pronunciation. Third is accent confusion. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगा, सर आई वुड लाइक टू स्पीक लाइक अ ब्रिटिश, लाइक एन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, ला ब्ला ब्ला। वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा फोकस एक्सेंट पे करते हैं एंड दे विल नॉट ट्राई टू गेट द क्लैरिटी ऑफ इट।
क्लैरिटी, हमको क्लैरिटी से प्रोनाउंसिएशन सीखना होता है, नॉट विद एक्सेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस। Fifth is very, very strong grammar focus. What is the meaning of this? Ignoring sound training. I'm talking about intonation. Okay. जब भी स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन सीखने का जज्बा रखता, जैसे ही वो एक्टिव लिसनिंग की तरफ या पैसिव लर्निंग की तरफ जाता, तो डायरेक्टली वो जंप करता ग्रामर के रूल्स सीखने के लिए, और उसका फोकस वहां से शिफ्ट होता ग्रामर रूल्स जानने के लिए। इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग, एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो यू फोकस ऑन वन थिंग, डोंट जंबल एंड स्क्रम्बल ओवर देयर। ओके, तो दिस इज अ फिफ्थ चैलेंज दैट स्टूडेंट फेस। कमिंग टू द लास्ट, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। देखिए, कौन सी भी चीज पे इंप्रूवमेंट आने के लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इन माय सिलेबस आई टॉक्ड अबाउट a session, a topic called persistency science. What is the science of consistency? एक आदमी को कंटिन्यूस कोई चीज पे अमल करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, और उसको कैसा अपनी आम जिंदगी में लाना पड़ेगा, और वो डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, वो हमारे सिलेबस में कोर वैल्यू है। बट दिस इज अ सिक्स प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस। हम किसी को बोलेंगे, अगर किसी को हम प्रैक्टिस के लिए कुछ देंगे, तो वो बंदा सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करेगा। डे 1, डे 2, डे 3 थोड़ा सा लेजीनेस और थकान की वजह से, टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं होने की वजह से, वो बंदा थर्ड डे से पूरा प्रैक्टिस के लिए स्किप करेगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वी कॉल व्हाट इज द साइंस ऑफ कंसिस्टेंसी। वो थोड़ा सा डीपर लेवल में कोर्स में समझा जाएगा, बट दिस इज द मेन एंड सिक्स प्रॉब्लम जो है इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ह्यूमन ब्रेन, ये जो न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, शायद आप लोग सुने होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती। मसल्स एक्टिविटी और बैक एंड का जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन जो ब्रेन में होता, रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें होता क्या, बंदे को, एक स्टूडेंट को रोजाना प्रैक्टिस करना जरूरी है। इफ दे डोंट प्रैक्टिस, देन दे लैक द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, जो प्रोसेस है वो वीक हो जाएगा। ओके, इसीलिए हमको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना जरूरी है। Okay, these are the top 6 problems that students face when it comes to learning pronunciation. First is rule overload, passive learning, no feedback loop, accent confusion, grammar focus, inconsistent practice. These are the 6 problems that students face. Okay, before we move on to top 3 neuroscience secrets to improve pronunciation, आपके लिए कुछ सवाल है, मेरे लिए कुछ सवाल है, तो टाइप कीजिए, या you can unmute yourself and speak before we move on to the next topic. No question? If no, then we can move forward. Okay, top 3 neuroscience secrets to improve pronunciation. The first secret is brain. जो आपका ब्रेन है ना, there is a concept in neuroscience called mirroring. Mirroring, okay? ये जो मिररिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ब्रेन फ्रेंडली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन फ्रेंडली? ब्रेन के अंदर आदमी जब किसी रोल मॉडल को, देखिए हमारा आदमी जो लैंग्वेज सीखता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक छोटा बच्चा है, समझे, जस्ट न्यूबॉर्न बेबी, वो लैंग्वेज सीखता कैसा? मदर के टंग को सुनते सुनते सीखता, राइट? वही कॉन्सेप्ट को हम मिररिंग बोलेंगे। अब ये एज में कैसा करना सर? आपको क्या करना है, एक रोल मॉडल सेलेक्ट करना है फ्रॉम सोशल मीडिया। ओके, you can go on YouTube or you can use new AI tool. AI tools के जरिए आप आपके कोई रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल मॉडल को आप डेली सुनना पड़ेगा, जिससे मिररिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यानी योर ब्रेन लर्न साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन बाय लिसनिंग टू देम। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको हम मिररिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, और ये मेमोराइजेशन नहीं है। ओके, I'll give you an example here. Let's say for example, if you listen, कभी आप एक ये सेंटेंस सुने, ओके? सेंटेंस ये था कि
I need to repair a fan. For example, I need to repair a fan. आप ये सेंटेंस सुने और दूसरी जगह आप सुने I have a phone. ओके दो सेंटेंस है. I need to repair a fan. I have a phone. फ्यूचर में अगर आपका रिक्वायरमेंट यानी सिचुएशन आया कि आपको ये बोलना है कि मेरे को फोन रिपेयर करना है, ब्रेन में इतनी कैपेसिटी और न्यूरल नेटवर्क्स है, ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है, आप आसानी से ऑटोमेटिकली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप ये आसानी से बोल सकते कि आई नीड टू रिपेयर अ फोन डायरेक्टली. ठीक है, पहले सेंटेंस हम सीखे थे आई नीड टू रिपेयर अ फैन. हमारा दूसरा सेंटेंस सीखे थे आई हैव अ फोन, मेरे पास फोन है. पहला सेंटेंस था मेरे को फैन बनाने की जरूरत है. दूसरा सेंटेंस है आई हैव फोन, मेरे पास फोन है. फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट आया कि आपको फोन बनाना है, ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है कि वो ऑटोमेटिकली ये दो सेंटेंस को मर्ज करके विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बोलेगा कि आई नीड टू रिपेयर ए फोन. वेरी वेरी पावरफुल, राइट? न्यूरल नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं और मिररिंग, वेरी वेरी स्पेसिफिक वर्ड इज मिररिंग. ओके, तो ये था हमारा मिररिंग कॉन्सेप्ट. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट व्हिच इज कॉपी इमोशंस नॉट वर्ड्स. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेन फ्रेंडली. देखिए, आदमी को जब कोई बंदा बोलेगा, you try to just focus on their emotions while they speaking. आपको बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, फेस जो भी है, फेस का जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं ना, वो आपको गौर करना है साउंड एक्टिव लिसनिंग के साथ, क्योंकि ब्रेन loves and it's very friendly in capturing the emotions with the words. Okay, तो आपको क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग के साथ बंदे के इमोशंस भी कैप्चर करना है और नॉट ओनली वर्ड्स पे, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको इमोशन भी कैप्चर करना है, जो कि बेहतरीन तरीका है प्रोनाउंसिएशन सीखने का. दिस इज द सेकंड न्यूरोसाइंस सीक्रेट. कमिंग टू द थर्ड, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. द थर्ड इज स्मॉल डेली प्रैक्टिस बिग ब्रेन चेंजेस. देखिए, जैसे ही आप कोई रोल मॉडल फॉलो करेंगे, मिररिंग कॉन्सेप्ट जो भी है, जब आप मिररिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, आपको कभी भी कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज मिल गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया या इंपॉर्टेंट फ्रेज मिल गया, आपको क्या करना है, वो रिपीटेशन में लाना चाहिए. आपको सेंटेंस कहीं ना एक डायरी मेंटेन करना है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिखना है. लिख के जैसे सुने, जिस अंदाज में सुने, आपको वो थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करना है. ये रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट भी न्यूरोसाइंस का ही है. हमारे पास ब्रेन के 3 एलिमेंट्स है, 3 पार्ट्स है. वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, हिप्पोकैम्पस एरिया. व्हेन यू रिपीट, ओके, जब आप कौन से भी सेंटेंस पहले सुने, तो वर्निकीज एरिया विल हेल्प यू टू हैव अ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, ब्रोकास एरिया हेल्प करेगा आपको बोलने के लिए, जिस अंदाज में सुने उस अंदाज में बोलने के लिए. ठीक है, तो ये रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि दोनों वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, ये दो ब्रेन के एलिमेंट्स आपके पुख्ते होंगे और सिचुएशन के बाद, सिचुएशन आने पर अगर आप रिपीटेशन, आपकी प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंट रही, सिचुएशन आने के बाद आप आसानी से, बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते. राइट, मेमोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली स्मॉल चंक में प्रैक्टिस करेंगे, और ये कंसिस्टेंसी से होना चाहिए. सो these are the three things that you need to keep in mind. Okay, before we move on, any questions in any one of this neuroscience secret? No question. अगर क्वेश्चन नहीं है तो दो चीजें हो सकती, आपको पूरा समझ में आ गया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया. दो चीजें हो सकती, राइट? No questions. We can move ahead. Thank you, Jamil, for confirmation. Let's move on. 6 neuroscience facts to master pronunciation. 6 ऐसी चीजें हैं
जो आपको फोकस करना है अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। चलिए, पहली चीज है न्यूरल मिररिंग, जो हमने अभी कवर किया। आपको क्या करना है, एक रोल मॉडल सेलेक्ट करना है यूट्यूब से, स्पॉटिफाई से, या नहीं तो एआई टूल से। 3 थिंग्स, ठीक है। या तो आप यूट्यूब से आपका रोल मॉडल सेलेक्ट कर सकते, या तो स्पॉटिफाई है ना, और ऑडियो जहां पर हमको सुनने को मिलता, या नहीं तो आप एआई टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, बिकॉज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी रोल मॉडल सेलेक्ट करेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए या एक्सेंट के लिए, जिस अंदाज में वो रोल मॉडल बोलेगा, आपकी जुबान, आपका ब्रेन वो साउंड्स भी कैप्चर करेगा। ओके, इसकी अगर मैं मिसाल दूं, ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिकल थिंग है। अगर कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, सपोज कि ये वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग लिस्ट यानी तोतली बात करते, वो तोतले बच्चों के ग्रुप में आप एक अच्छे बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए और 15 मिनट्स उसको साथ रखिए। 15 मिनट्स के बाद आप अलहदा जाके वो बच्चे से बात कीजिए, वो भी तोतलाना स्टार्ट करेगा। दिस इज ए साइंस, आप इसको ठुकरा नहीं सकते। If you want, in today after this webinar, you can go and check this 3 brain areas: Wernicke's area, Broca's area, hippocampus area। ये तीन ब्रेन के पार्ट्स हैं जो आदमी को लैंग्वेज सीखने में मदद करते, ठीक है। और छोटे बच्चों में तो ये ब्रेन एरियाज बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट। जो सुनते डायरेक्टली वो कैप्चर करते, एट द सेम टाइम दे कैन इजीली प्रोनाउंस इट, ठीक है। चाहे वो तोतली बात रहो, चाहे वो अच्छी बात रहो, दे कैन कैप्चर। दिस इज वन एग्जाम्पल। अब ये एज में, अब पूरे वर्किंग प्रोफेशनल से माशाल्लाह एज ज्यादा हो गई, तो आपको एक टाइम सुनने से, वन टाइम लिसनिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लर्निंग का प्रोसेस जो है, हमारा स्लीप पैटर्न खराब हो गया, डाइट बराबर नहीं है, और यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, कंफ्यूजन, सोशल मीडिया, रील्स ज्यादातर देखना, इससे ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई, बहुत भी बहुत कम हो गई। तो आपको 3 या 4 बार सुनना जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। न्यूरल मिररिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू सेलेक्ट रोल मॉडल। रोल मॉडल आपको देखना है। और दूसरी चीज, आपको रोल मॉडल के साथ एक्टिव लिसनिंग की जरूरत है, जिससे होता क्या, आपका रोल मॉडल जिस अंदाज में बात करा, आप वही अंदाज कैप्चर करते, आपका ब्रेन वही अंदाज कैप्चर करता, विच इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑडिटरी फीडबैक लूप। देखिए, आपको कोई टीचर की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जैसा सुने वो बोलने के दौरान आपकी मतलब जबान में मसल्स, स्पीच आर्टिकुलेटर्स बोलते हैं इसको, सुनने के बाद आपके स्पीच आर्टिकुलेटर्स फ्री होना जरूरी है। ओके, जैसे सुने मगर उस अंदाज में बोलने नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इफ यू आर अनेबल टू प्रैक्टिस वेल इन अ करेक्ट मैनर, दिस इज अ सेकेंड प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस के लिए आप एआई टूल्स का भी इस्तेमाल करते, कुछ टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपके प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर सकते। दिस इज द सेकेंड थिंग। कमिंग टू द थर्ड थिंग, विच इज माइक्रो रिपीटेशन। याद रखिए, इंसान एक साथ कौन सी भी चीजें नहीं सीख सकता, ओके, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यू कैन इन दिस माइक्रो रिपीटेशन, छोटे चीजें जैसे कि स्मॉल सेंटेंसेस, जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, switch off the fan, switch on the fan, let's go to sleep, let's have a dinner, please come tomorrow, you can call tomorrow। ये बेसिक सेंटेंस आपको अगर चैट जीपीटी में टाइप करना है तो एक प्रॉम्प्ट लिखिए, गिव मी कॉमनली यूज 100 इंपरेटिव सेंटेंसेस, आप आ जाएगा वो वर्ड्स यूज करके आप एआई टूल है जो आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आई कैन गिव यू दैट। ओपन एआई एफएम करके एक टूल है जो आपके टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता, ओके। वो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं, आपको वो लेके जाके वो टूल में डालना है और उससे ऑडियो निकालना है, ठीक है। वही ऑडियो सुनना है, जैसे ही सुनेंगे आपका वर्निकीज एरिया एक्टिवेट होगा, उसके बाद आपकी जबान ऑटोमेटिकली बोलेगी। और ये माइक्रो रिपीटेशन है, आपको छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में सीखना है, ठीक है, नॉट फ्रॉम अ बिग सेंटेंसेस। इसको माइक्रो रिपीटेशन बोलते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। देखिए, इंसान को कोई चीज याद रखने के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देना जरूरी है।
ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है भूलना। याद रखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ब्रेन? ऑटोमेटिकली भूलना। अब सवाल यह है कि सर उसको पकड़ के रखने के लिए क्या करना? कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का इस्तेमाल करना। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का मतलब या तो कोई आप ऐसा सेंसरी यानी किसी चीज से उसको रिलेट करना, ठीक है, किसी चीज से, या तो वो वियर्ड साउंड हो सकता वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन सीखने का, या तो किसी ऑब्जेक्ट से उसको रिलेट करना, या तो किसी आदमी से रिलेट करना, या तो अपने पास एक्सपीरियंस से रिलेट करना। बोलने का मतलब ये है कि किसी चीज को याद रखने के लिए आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट लाना जरूरी है, कुछ बैकग्राउंड लाना जरूरी है। इंडिविजुअल वर्ड नहीं याद कर सकते। अगर आप याद भी करेंगे तो सिचुएशन के टाइम पर वो रिकॉल नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन में भी यही कॉन्सेप्ट है। इफ यू डू ए कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, कुछ बैकग्राउंड के साथ चीजों को सीखना जरूरी रहता। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो ये एक एग्जाम्पल देखिए, किसी दावत में हम ओवर कुक फूड खाए, यानी ज्यादा पका हुआ दाग लगे हुआ बिरयानी खाए, सोचिए, ठीक है। हम वहां पर बैठे हुए थे, उसकी स्मेल आ गई, बिरयानी दाग लगने की स्मेल आ गई। वही स्मेल अगर घर में आई, सडनली घर पर कोई बिरयानी बड़ी, मम्मी से देर लेट हो गया कि स्टव बंद करने में देर हो गई, तो वो स्मेल आई, कौन सी? बिरयानी दाग लगने की स्मेल आई। आपका ब्रेन डायरेक्टली रिलेट करेगा, हम ये स्मेल कहाँ सुने थे? रिसेंटली हम दावत में गए तो यही स्मेल आई थी, क्योंकि बिरयानी ओवरकुक हुई थी। ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग कितना पावरफुल है। यानी वहां पर हम स्मेल को रिलेट किए थे। आप आदमी को भी आप रिलेट कर सकते, कोई चीज सीखने के लिए साउंड को भी कर सकते, एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू कैन डू ए कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन एनी वे। अब ये मास्टरी हासिल करने के लिए आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड और प्रैक्टिकल अप्रोच सीखना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इज वेरी वेरी पावरफुल, और ये रिकॉल करने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। ओके, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि न्यूरोसाइंस फैक्टर है टू मास्टर द प्रोनाउंसिएशन। कमिंग टू फिफ्थ, which is focus attention loop. Focus attention loop. What is the meaning of focus attention loop? फोकस अटेंशन लूप क्या है? देखिए, आज के जमाने में सबसे वैल्यूएबल थिंग क्या है? मेरी नजर में फोकस है, नॉट टाइम। टाइम इज नॉट द वैल्यूएबल एसेट इन टुडेज वर्ल्ड। टाइम से भी इंपॉर्टेंट है फोकस। व्हाई फोकस? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अगर मैं इसको आसान आसान लैंग्वेज में बोलूं, जहां पर हमारा फोकस गया वहां पर रिजल्ट, दैट्स इट। आप कभी गौर कीजिए, या नहीं तो इस अंदाज में सोचिए कि दिन भर में आपको जितना भी थॉट प्रोसेस आता, जहां पर भी आपका फोकस तवज्जो गई, वहां पर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते। ये साइंस है। जो भी आपका थॉट प्रोसेस, आप जो भी करंट आपकी जो पोजीशन है, फिलहाल आप जो पोजीशन पे है, स्टूडेंट्स रहने दो, आपके स्टडीज का परफॉर्मेंस या वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो परफॉर्मेंस देखिए, जो भी आपके दिमाग में जो चीजें चलते रहते, जहां पर आपका फोकस गया वहीं पर आपका अटेंशन और वहीं पर आपको इंप्रूवमेंट आता, ठीक है। फोकस आने के लिए टाइम की जरूरत है, बट टाइम इज नॉट वन ऑफ द वैल्यूएबल एसेट, फोकस इज वन ऑफ देम। ओके, आज के जमाने में फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ा था, नहीं, एक किताब में हमने पढ़ा था, किताब का नाम है डू इट टुडे। ओके, ऑथर का नाम भूल रहा हूं। वो ऑथर ने लिखा कि करंट फोकस अटेंशन स्पैन, अमेरिकन अमेरिकन का स्टेटस है, स्टैटिस्टिक्स है, वो ये बताते हैं कि एक बंदे का अटेंशन स्पैन फिलहाल जस्ट 20 सेकेंड्स है, दैट्स इट। 20 सेकेंड एक आदमी कोई चीज पे फोकस कर रहा, उसके बाद उसका अटेंशन स्पैन वहां से हट जा रहा है, यानी फोकस हट जा रहा। समझ गए? कोई चीज पे हम काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई चीज डीप स्टडी कर रहे हैं, 20 सेकंड तक, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया, हैदराबाद, आई डोंट नो अबाउट इट, जो मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ ये
अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है, अमेरिकन में ये चल रहा है कि 20 सेकंड अटेंशन स्पैन है। जैसे 20 सेकंड कितना होता है यार, टिक 1 सेकंड, 20 सेकंड, दैट्स इट। 20 सेकंड में आदमी का अटेंशन हट जा रहा वहां से। देयर कुड बी मेनी रीजंस, फोन रिंग हो जा रहा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा, कोई डोर नॉक कर रहे हैं, या मम्मी बुला रहे हैं, या मैनेजर्स का कॉल आ रहा, कुछ भी हो सकता। क्योंकि ये जमाने में टाइम का जो पेस है वो बहुत सेंसिटिव हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फोकस अटेंशन लूप। हमको फोकस कैसा बनाए रखना, उसका कुछ कॉन्सेप्ट है। फिलहाल फोकस कैसे मैनेज करना, आपको एक टिप अगर मैं दूं तो वो ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। जब भी आपको इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, आपको फोन दूसरे रूम में रखना, वो भी स्विच ऑफ रखना। एक ही मैं टिप अभी दे सकता हूँ जो कि वेरी पावरफुल है, विच वी फॉलो इन आवर सिलेबस एज वेल, ठीक है। लास्ट टिप है टिप नंबर 6। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल, स्पेशली इन हैदराबाद ओल्ड सिटी में ये बहुत बुरा हाल है। वो ये है कि हमारा जो स्लीप पैटर्न है, यानी सोने के जो टाइमिंग्स है वो बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है उसको धज्जियां उड़ गए। हैदराबादी अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोसेस इतना तबाह हो गया कि आप अगर न्यूरो साइंस टेक्निक्स में देखेंगे ना, स्लीपिंग पैटर्न क्यों जरूरी है, आपको स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना है। डेली आपको एक टाइम पर ही सोना है, एक टाइम पर ही जागना है। जिससे होता क्या, जब आप सोते हैं तो जितना भी दिन भर में कौन कौन सी लर्निंग, कौन कौन सी नई स्किल सीखे ना, वो ब्रेन आपका वो नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में कन्वर्ट करता, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीजें शिफ्ट होते हैं। वो कब होता, जब आपका स्लीप पैटर्न सही हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मंडे के दिन मॉर्निंग 3 o'clock सोया, समझ, ट्यूसडे के दिन 11 बजे सो गया, वेंसडे के दिन 12 बजे सोया, अगेन फिर उसके दूसरे दिन और एक दावत आ गई, मॉर्निंग 4 o'clock हो गया, फिर सैटरडे के दिन आया तो पूरी रात जागा, दोस्तों के साथ चबूतरा मिशन व्हाटएवर, उसके बाद वो बंदा पूरी नाइट शिफ्ट की तरह मॉर्निंग 6 o'clock आके सोया। तो ये जो स्लीप पैटर्न है ना, इससे ब्रेन की जो लर्निंग का प्रोसेस है ना वो बहुत खराब होता। इसीलिए हम देखते हैं ना, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, किसी स्टूडेंट्स को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा उसका अटेंशन स्पैन बाकी नहीं रहता। वजह यह है कि वो बंदे के अंदर सर्कुलर सर्कैडियन करके कॉन्सेप्ट है, इफ यू वांट यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। सर्कुलर सर्कैडियन यानी हमारा जो बॉडी का जो निजाम है ना, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, अंदर का जो बॉडी का फंक्शनिंग है, वो स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत डिपेंड करता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेल्थ के जितने भी आप बड़े कॉम्प्लेक्स डिजीज है ना, जैसे कि शुगर, कैंसर, इसकी बुनियादी रीजन यही है, स्लीप पैटर्न खराब होना और टेंशन, दो चीजें हैं, ठीक है। आप स्लीप पैटर्न और डाइट, हमारे सिलेबस में डाइट का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम डाइट प्लान भी देते हैं, जो आगे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बोलेंगे। स्लीप पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपको एक इंटेलिजेंट लर्निंग पर्सन बनना है तो आपको डाइट और स्लीप पैटर्न वेरी स्ट्रांगली फॉलो करना जरूरी है। ये थे हमारे 6 न्यूरोसाइंस फैक्टर्स टू मास्टर प्रोनाउंसिएशन विदाउट मेमोराइजिंग। फर्स्ट इज न्यूरल मिररिंग, ऑडिटरी फीडबैक लूप, माइक्रो रिपीटेशन, contextual learning, focus attention loop, and sleep pattern for learning abstraction, for abstract learning. Any questions before we move on? You can unmute and speak, no problem. Or you can you clarify my doubt? What is it? Okay, Aman, I will give you. Aman, I can send you on my WhatsApp. You require your role model, right? I can give you. Okay, give me some time. रोल मॉडल देना इतना आसान नहीं है. I need to check. No question. Thank you so much, Jamil, for confirming.
चलिए देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, जितना भी हमने अभी बताया, न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट जितने भी है, उसका सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बोलने की आप कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखिए, यू कैन टेक एनी लैंग्वेज, रुए जमीन पर अर्थ पे कौन सी भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसके अंदर तीन चीजें आपको रहेगी। फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, सेकंड इज वोकैबुलरी, थर्ड इज ग्रामर। आपको प्रोनाउंसिएशन रहेगा, वोकैबुलरी रहेगी, ग्रामर के रूल्स रहेंगे। कौन सी भी लैंग्वेज, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, कौन सी भी लैंग्वेज लीजिए, तलफ्फुज रहेगा, ग्रामर के रूल्स रहेंगे, और किसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स एंड मीनिंग्स रहेंगे। ये तीन चीजें तो बाय डिफॉल्ट रहेंगी। हमारे सिलेबस में कुछ चीजें कवर है। पहली चीज है फाउंडेशन। ये हमारे सिलेबस का जो करंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, करंट वी आर हैविंग 1.12 वर्जन, अभी जो वर्जन चल रहा। पहली चीज हमारे सिलेबस में हम कवर करते हैं फाउंडेशन। एक नए स्किल सीखने के लिए आदमी के पास क्या क्या चीजें होने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नई, अम्मा बोली भैया कुछ हेलो, जाएंगे बोल के। ओके, फाउंडेशन पहली चीज है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड अभी फॉलो कर रहा है, और मैंने तकरीबन एक मोर देन एक 40 पर्सनल डेवलपमेंट्स के हमने किताबें पढ़ी। उसके अंदर हमने देखा कि आपको कोई नई स्किल सीखना है तो आपको पहले माइंडसेट की जरूरत है। फर्स्ट माइंडसेट, देन स्किल सेट। क्योंकि जो अचीव करना है उसके लिए आपको हार्ड वर्क की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और बुरी सोबत से बचना सक्सेस प्रिंसिपल है, जो अभी हम बोनस में आपको देने वाले हैं। तो फाउंडेशन में हमने आपको ये जो फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको एक 40 बुक्स का एक निचोड़ है, और जो हम फॉलो करेंगे ना, आपको रिजल्ट नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो साइंस से साबित है। ओके, एक आदमी को रिजल्ट नहीं आता, क्यों नहीं आता? या तो उसके पास टाइम नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती, या नहीं तो करने के लिए मन नहीं चाहता। उसके पीछे साइंस है, एंड वी कैन इम्प्रूव इट। एज वी आर ह्यूमन, देयर इज ए साइंस टू फॉलो इट, ठीक है। फाउंडेशन के अंदर हमने दूसरी चीज कवर करते हैं, जिसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं। आपको स्पीच आर्टिकुलेटर्स हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, और दूसरी चीज हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उसके अंदर न्यूरो साइंस टेक्निक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक डाइट प्लान भी दिया जाता। इससे होता क्या, आपके जो ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो डाइट डाइट प्लान से इंप्रूव करते हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। एक बंदा है, जिम ज्वाइन किया, ओके, अ पर्सन जॉइंस जिम, उसका ट्रेनर बेहतरीन है, ओके, द ट्रेनर इज गुड, ट्रेडमिल पर बेहतरीन रनिंग हो रही, पुशअप, सिटअप, बेहतरीन मेहनत हो रही, बट उसकी डाइट जो है बहुत वीक है। आंसर मी दिस क्वेश्चन, उसको रिजल्ट आएगा? क्योंकि इसकी डाइट बहुत कमजोर है, उसके ब्रेन, उसका जो बोन्स है वो बहुत वीक है, क्योंकि उसकी ग़िज़ा बहुत कमजोर है। वो बाहर की फूड, जंक फूड खाता, फिर रात में, मॉर्निंग को एक बार, इवनिंग को एक बार जिम ज्वाइन करा, और वो डेली मेहनत करता, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि डाइट, क्योंकि इंसान को कौन सा भी ब्रेन, कौन सा भी ऑर्गन स्ट्रांग बनाने के लिए उसको कुछ डाइट फॉलो करना पड़ता, ठीक है। ब्रेन की बोन की स्ट्रेंथ बनाने के लिए बोन के कुछ डाइट लेना पड़ता। इसी तरीके से न्यूरो साइंस से लैंग्वेज सीखने के लिए एक स्पेसिफिक डाइट प्लान है, विच वी गिव इन आवर सिलेबस। और माइंडसेट भी इंप्रूव करना, वो सारी चीजें ये फाउंडेशन में कवर होती। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन। हमारे पास एक न्यूरो साइंस टेक्निक का एक फॉर्मूला है, उसको हम स्पीक राइट फ्रेमवर्क बोलते हैं, जो कि फॉलो करने से आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता। देयर इज नो मेमोराइजेशन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो एक टेक्निक है न्यूरो साइंस की, जिसको हम स्पीक राइट फ्रेमवर्क बोलते हैं। द थर्ड इज ग्रामर। ग्रामर के रूल्स याद करना, पुराना जो तरीका था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इतने सेंटेंस है, इसको लिखते जाओ, रटते जाओ, वो कॉन्सेप्ट गया, ठीक है। हमारे यहाँ एक ग्रामर मास्टरी फॉर्मूला करके एक कॉन्सेप्ट है, वो भी न्यूरो साइंस ब्रेन फ्रेंडली फॉर्मूला है, जिससे आपको ग्रामर रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली यू विल स्पीक
correct grammar without learning rules. And the next is vocabulary. How to build the vocabulary. देखिए पहले का जमाना था कि आपको डिक्शनरी लेकर के बैठ के आपको कौन से वर्ड्स कैसा पढ़ना, कौन से वर्ड्स को उसका मीनिंग क्या है, फिर हम रोमन इंग्लिश के डिक्शनरी खरीद के ला के पढ़ते थे। एडवांस लेवल में लोग गूगल का इस्तेमाल करके करते थे। इस वोकैबुलरी बिल्डिंग सिस्टम में हम एआई टूल का इस्तेमाल करके आपको रिलेटेड वोकैबुलरी देंगे। और ये जो वोकैबुलरी बिल्डिंग सिस्टम है, हमारे पास दो सेक्शन है वोकैबुलरी सीखने के। एक है बेसिक वोकैबुलरी, दूसरा एडवांस वोकैबुलरी। एडवांस वोकैबुलरी में आपको जो फील्ड में है वो फील्ड की वोकैबुलरी आपको हम देंगे। ओके, आप बताइए आप बताइए, एक फिजिशियन है और एक होटल मैनेजमेंट यानी एक शेफ है, समझ दोनों की वोकैबुलरी डिफरेंट रहती या सेम रहती? इसके वर्ब्स, इसके नाउन्स अलग रहते, ये बंदे के नाउन्स और ये बंदे के वर्ब्स अलग रहते, क्योंकि फील्ड इज डिफरेंट, राइट? तो एडवांस वोकैबुलरी फॉर्मूला में हम स्टूडेंट्स को वो कैरियर के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक वर्ब्स और स्पेसिफिक नाउन्स देते जो उसकी फील्ड के रहते। द काउंट में बी बिटवीन 100 and 150। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला। देखिए अभी हमने कोई चीज कवर की कि आदमी को वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी याद करने का बेहतरीन तरीका है कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। आपको किसी चीज से उसको अटैच करके सीखना रहता, ठीक है, या उसको कोई कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड देना। उसकी वजह से क्या होता, जैसे ही सिचुएशन आया आपकी जबान पे वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंटली निकलता। तो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेशली इंग्लिश के लिए आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ लीजिए, ग्रामर के रूल्स याद कर लीजिए, वोकैबुलरी भी याद कर लीजिए, फिर भी आपकी जबान पे फ्लुएंसी नहीं आने वाली, राइट? वो इसीलिए कि जो भी आप याद करें वो तो हमारे ब्रेन में सेट हुआ, ब्रेन में तो आ गई नॉलेज। अब जबान पे लाने के लिए देयर इज ए प्रोसेस। हाँ, उसको हम न्यूरोस्पार्क कम्युनिकेशन टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक में होता क्या, जैसे ही सिचुएशन आया आपको ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, आई हैव टू रिपेयर ए फैन, आई हैव ए फोन। अब नेक्स्ट टाइम एक सिचुएशन आया कि आपको ये बोलना है कि मेरे को फोन बनाना है, ऑटोमेटिकली आपके न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट करेंगे आई हैव टू रिपेयर ए फोन करके। ये जो सेंटेंस न्यूरल नेटवर्क और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है, ये ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिवेट करने का देयर इज ए प्रोसेस फॉर इट एंड व्हिच वी कॉल्ड न्यूरोस्पार्क कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू सक्सेस प्रिंसिपल। चाहे इंटरव्यू कौन सी भी रहो, डोमेस्टिक कंपनी की इंटरव्यू या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की इंटरव्यू, या नहीं तो आपको कोई बाहर कंट्री यूएस कंट्री के लिए अप्लाई करें तो इमिग्रेशन की इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू, जैम सेशन, चाहे इंटरव्यू कौन सी भी रहने दो, उसका सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, आपको इंटरव्यू कैसा क्लियर करना, उसके अंदर कुछ फाउंडेशन रूल्स हमने बनाएंगे। क्योंकि एज पर मी, my personal experience, I've given more than 50 interviews across I mean maximum बड़े कंपनीज हमने पूरे कवर कर दी। ठीक है, हमारे मेरे एक्सपीरियंस में I've given more than 50 interviews, out of which more than 30 interviews have been failed. Okay, and as a software engineer I've taken I think between 15 to 20 interviews. I've taken the technical rounds. हमने कंपनी में टेक्निकल राउंड्स इंटरव्यूज लिए भी। तो दो एक्सपीरियंस है, एज ए फेलियर का, एज ए स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है, एज ए इंटरव्यूअर का भी एक्सपीरियंस है। तो ये दो एक्सपीरियंस को हमने ज्वाइन करके एक इंटरव्यू सक्सेस प्रिंसिपल करके एक फ्रेमवर्क बनाया, जिससे आपको कौन से भी इंटरव्यूज क्लियर करने का उसके अंदर आपको सिस्टम है, जो पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली बेहतरीन अंदाज में इंटरव्यूज क्लियर कर सकते, राइट? ये था हमारा क्विक सिलेबस ओवरव्यू। अब बताइए, कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं मैं, जिसके अंदर नेक्स्ट बैच के डिटेल्स है और
ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, कुछ डिस्काउंट और ऑफर भी चल रहा, वो सारी चीजें आपको मैं शेयर करने वाला हूं. बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? Any questions in any topic? Webinars related topic or any questions? What is the duration of the course, sir? I will answer that. In the next slide, we are going to know about it. In the next Okay. slide, we'll have it. What about others? Okay, दूसरों sir. के लिए कोई questions है? नेक्स्ट बैच कब कब से स्टार्ट हो रहा है सर? You will have that answer. No problem. The next slide. चलिए start करते हैं. Next slide. Yeah. Are you able to see the screen? Just confirm. यस. Yes. Okay. This is your detail which you're talking about. ठीक है? New batch starting from Monday, 13th of October. 13 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है और हमारे वीकेंड्स CSH कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स हब के हॉलीडेज जो रहेंगे थर्सडेज एंड फ्राइडेज, 2 दिन क्लासेस को छुट्टी रहेंगी. ओके, सैटरडे एंड फ्राइडे भी क्लासेस रहेंगे. और बॉयज क्लास मोड, बॉयज है वो लोग को 2 भी ऑप्शन है. If they want, they can join online. If they want, they can join offline. No problem. ठीक है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं. गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच है, जूम मीटिंग. ओके, देयर इज नो ऑप्शन फॉर गर्ल्स टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लास. गर्ल्स के लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं है. There are some guidelines that I follow. That's the reason there is no option for girls to join offline classroom training. Institute location, the people who have joined today, you raise your hand. I'll answer your question once I complete this. Institute location is at Hafiz Baba Nagar. When you enter from Umar Restaurant, it's very near to Umar Restaurant. ठीक है, Umar Restaurant के करीब है Hafiz Baba Nagar. Course duration is 40 days, including holidays. Fee details, देखिए current price है कोर्स का 9,999 plus 200 registration fee, but there is an offer going on, 40% discount. The offer is, it is valid only till Sunday before 12th of October. 12th of October से पहले अगर आप एडमिशन लिए तो फी है 5,999 plus 200 registration fee. और ये ऑफर वैलिड रहेगा till 12th of October Sunday. ओके, फ्राइडे के दिन तो हॉलीडे रहेगी. वी आर ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज ऑल्सो. एडमिशंस आर ओपन. You can call me on my number 707-589-3009. You can ping me on WhatsApp also. If you have any questions, you can ask me before taking admission, or you can come to institute. आप institute को भी आ सकते हैं, institute को आकर, और whatever the questions you have, you can pose me. जो भी सवालात है एडमिशन से पहले हम डिटेल में बात करेंगे और एक बार. You can do that, right? तो ये था हमारा सिलेबस ओवरव्यू. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, लेट मी टेल यू दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, इनिशियली हमने बताया कि इट इज नॉट ए स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, इट इज ए कम्युनिटी. ओके, और मेरा मकसद है जो भी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट, डिग्री, पीजी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, टीचर्स, उलमास, जो भी है, मेरा मकसद है ये लोग को कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना आना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, रेस्टोरेंट में जाए, एयरपोर्ट पर जाए, इंटरव्यू दे, डायलॉग्स है, जैम सेशंस है, पब्लिक स्पीकिंग है, कौन से भी सिचुएशन पे आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने आना, ये कॉन्फिडेंस स्पीकर्स हब का मकसद है. जैसे ही हमने ये हमारे कोर वैल्यूज और ये मकसद बयान करे, इसका मतलब ये है कि 40 डेज का कोर्स होने के बाद भी, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग 40 डेज, इट्स नॉट दैट कि 40 दिन का कोर्स खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं है.
जब भी आप ये फीस पे कर देंगे, ऑफर का प्राइस है 599 प्लस 200 रजिस्ट्रेशन फी। जैसे ही आप ये पे करेंगे, आप एक मेंबर बन जाएंगे कॉन्फिडेंस स्पीकर्स हब के। जैसे ही मेंबर बनेंगे, आप कितने भी बार ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते। ऐसा नहीं है कि वन टाइम फी पे करें, 40 दिन का क्लासेस हो गए, उसके बाद खत्म, यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन अनदर टाइम, ऐसा नहीं है। आप जैसे ही फी पे करें, यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के बाद आपको एक इंटरव्यू का ऑप्शन आया, अपॉर्चुनिटी आई, तो जब भी आप मेरे को कॉल करके 3 दिन पहले बोल देना, सर ये इंटरव्यू है, मेरे को थोड़ा सा आपकी सपोर्ट चाहिए इन प्रिपेयरिंग द रेज्यूम, या नहीं तो रेज्यूम प्रिपरेशन का तो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी इसके अंदर कवर कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर सपोर्ट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या कुछ और भी चीजें है तो ठीक है, यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। 3 दिन पहले कॉल करना, सर आई एम गोइंग टू कम टू, स्पेशली ये जो डाउट्स क्लैरिफिकेशन है ना, हम लोग थर्सडे के दिन करते। उस दिन क्लास तो नहीं रहती, उस दिन थर्सडे इंस्टीट्यूट ओपन रहता, बट देयर विल बी नो क्लास। जो भी डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस है वो भी 3 to 5 o'clock आफ्टरनून, यानी शाम में 3 बजे से 5 बजे के दरमियान एवरी थर्सडे डाउट्स क्लैरिफिकेशन सेशन रहता। वो इन पर्सन क्लास यहाँ पर इंस्टीट्यूट को विजिट करके आप डिटेल्स लेकर के और जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं एवरी थर्सडे। फ्राइडे के दिन तो वी आर टोटली क्लोज, इंस्टीट्यूट बंद रहेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी का मतलब आप समझ गए। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये था हमारा सिलेबस ओवरव्यू प्लस कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, हम सब चीजें इसके अंदर कवर कर चुके। One last, can it be, how much time will it take? For course duration, it will take 40 days. Okay, I think this is an old question. Okay, at last, coming to your bonuses. I promise you, right? I will give bonuses. Let me go to that. आज के वेबिनार के बोनसेस, 2 बोनसेस देने वाला हूं। ओके, पहला बोनस है 7 सक्सेस प्रिंसिपल। ये जो सक्सेस प्रिंसिपल्स है ना, ये हम फाउंडेशन में कवर करते हैं। एक आदमी को नया स्किल सीखने के लिए कौन कौन सी 7 चीजों की जरूरत पड़ती, इसको लिखना, और इफ यू वांट यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट, वेरी वेरी पावरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ बुकिश पर्सन। ठीक है, हमने टोटल एक 40 से 50 पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी, इंक्लूडिंग न्यूरो साइंस टेक्निक। एक बंदे को नई स्किल सीखने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती, वो इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, इस पे बहुत फोकस से आपको कल से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकता, चाहे वो कौन सा भी नया स्किल ले लो, रूए जमीन पर आपको सीखने के लिए ये 7 चीजों पर अमल करना जरूरी है। अगर कहीं भी एक चीज भी मिस हुई, आपको सक्सेस, कामयाबी मिलना मुश्किल है। चलिए देखते हैं क्या 7 प्रिंसिपल है। और ये जो हमने 7 प्रिंसिपल्स लाए हैं ना, ये मल्टीपल बुक्स का एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, यानी ये एक जगह पर नहीं मिला, ये मल्टीपल किताबों का एक रिसोर्स हमने जमा किया। जो 7 प्रिंसिपल है, पहला है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखिए, आदमी को, अभी हमने बताया कि कौन सा भी स्किल सीखने के लिए माइंडसेट की जरूरत बहुत जरूरी है। अगर माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ दिन के बाद आप जो स्किल सीख रहे हैं ना, वहां से यू टर्न मार देते। यू टर्न का मतलब, ट्रेनर ने बताया, कोच ने बताया कि आपको डेली प्रैक्टिस करना, आपसे नहीं हो सकता। क्यों? वीकनेस, आपका माइंडसेट वीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए क्या करना, हमारे कोर्स में इसके डिटेल बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछले हमारा जितना भी ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, स्टूडेंट को हमने बोला कि ये डेली प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं सर टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक एक्टिविटी कराते हैं हम लोग, टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट एक्टिविटी। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक कैलकुलेशन की टाइम एक्टिविटी हम कराते कोर्स में, जिसके अंदर होता क्या, आदमी को
टाइम, कौन सा टाइम कहाँ पर जा रहा पता चलता। ओके, कोई चीज को सीखने के लिए इंसान के पास टाइम होना तो जरूरी है ना। बगैर टाइम की कौन सी चीज सीख सकते आप। टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है एनर्जी मैनेजमेंट। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम है सर टाइम, वी आर फ्री स्टूडेंट्स है, बाज जने कॉलेज को रेगुलर जाते, बाज जने कॉलेज को रेगुलर नहीं जाते, टाइम बहुत है सर, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। मगर सपोज कीजिए एनर्जी नहीं है। इफ यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल जाके देखिए, बहुत लोगों के पास टाइम रहता, अटेंडेंस के पास भी रहता, जो पेशेंट है उनके पास भी रहता, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो लोग के पास एनर्जी नहीं है। टाइम तो है, आपको 3 डेज के लिए एडमिट हो गए, बहुत टाइम है, मगर एनर्जी नहीं है, कोई नई चीज सीख नहीं सकते। आपको कामयाबी, कोई नई चीज सीखने के लिए एनर्जी का भी होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, सेकंड इज टाइम, थर्ड इज एनर्जी। चलिए, माइंडसेट भी है, टाइम भी है, एनर्जी भी है, मगर फोकस नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो सीख नहीं सकते कौन सी भी चीज। इसीलिए हमने बताया ना, डू इट टुडे बुक का हवाला देके बताया कि एक आदमी का अटेंशन स्पैन अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है। आपको फोकस के साथ कौन सी भी चीज करना जरूरी है। आज के इस दौर में 2025 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोकस का है। मैं एक आज के ये वेबिनार में एक चैलेंज दे रहा हूं आपको। चैलेंज ये है कि आप एक स्टॉप क्लॉक, यानी एक टाइमर फोन में, हर मोबाइल में टाइमर रहेगा ना, टाइमर ऑन कीजिए, कौन सा भी एक इंपॉर्टेंट टास्क ले लीजिए, उसके ऊपर आप टाइमर ऑन करके कितना फोकस के साथ कितनी देर आप वो काम कर सकते देखिए। जैसे ही आपकी तवज्जो हटी, वहां पर स्टॉप, जो भी स्टॉप वॉच लगाए थे उसको स्टॉप कर देना। देखना कि कितने सेकंड्स, सेकंड्स बोल रहा हूं मैं, मिनट भी नहीं, घंटे भी नहीं, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कमजोर है, बहुत वीक हो गया। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। देखिए, आज से आप ये वेबिनार के बाद कल आप ये ट्राई कीजिए। आप फोन लेना है, टाइमर स्टार्ट करना है, कौन सा भी इंपॉर्टेंट टास्क ले लीजिए। जैसे ही आपकी फोकस, आपका अटेंशन कोई काम पे से हटते कि आप स्टॉप क्लॉक रोक देना और देखना कि कितने सेकंड आपका अटेंशन स्पैन है। इससे आपको पता चलता कि आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं, यानी आपका लेवल क्या है वो पता होना जरूरी है। देखिए, कोई चीज को इम्प्रूव करने के लिए उसको मेजर करना स्टार्ट कर देना। ओके, इफ यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग यू हैव टू मेजर इट। कहां पर ठहरे हो मालूम तो होना चाहिए ना। तो फोकस, जहां पर फोकस गया वहां पर रिजल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बैड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है सोहबत, गलत सोहबत। अक्सर मैं ये एग्जाम्पल देता हूं और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि एक बंदे को बनना है डॉक्टर, एमबीबीएस कर रहा हो बंदा, मगर रह रहा चोरों के साथ, डाकुओं के साथ। ठीक है, तो वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा इसके ऊपर डाउट है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, मगर वो पक्का चोर बनेगा। क्योंकि इन्फ्लुएंस का जो कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो पक्का काम करेगा। ठीक है, बुरी सोहबत से आदमी बुरा बनता। इफ यू वांट टू सी सम एग्जांपल्स यू कैन सी इट। दही दूध का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। दही हम दूध में थोड़ा सा मिला के कुछ घंटे रखते, कुछ घंटों के बाद वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता, उसके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते। दही से आप चाय नहीं बना सकते, दूध से आप छाछ नहीं बना सकते। आयुर्वेदा के पास दही एक मीठा, एक ठंडा का काम करता, दूध औसत है, एवरेज है। यानी बोलने का मतलब क्या, उसके क्वालिटीज भी चेंज होते। इंसान, यानी सोहबत का इतना बुरा असर होता, यानी ये अच्छा भी असर, यानी इसको आप नेगेटिव में लेना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। बुरी सोहबत में रहे तो बुरे बनेंगे, अच्छी सोहबत में रहेंगे तो पॉजिटिव एग्जाम्पल अच्छे बनेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी तवज्जो वहां पर नहीं गई तो वेरी सिंपल है। जो बनना है उनके साथ रहना स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। समझ गया आप? ठीक है, जो भी स्किल सीखना है, इट्स ए क्वालिटी, इट्स ए प्रैक्टिकल। ठीक है, मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी स्किल सीखना है वो स्किल सेट वाले आदमी के साथ रहो और ऑब्जर्व करो खाली,
वो बंदा कैसा काम कर रहा, आपको स्किल आ जाती। इस पे आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना पड़े तभी भी करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ, जैसा हमारे पास 2 डिवाइसेस में ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर होता है, राइट, उसी तरीके से क्वालिटीज भी ट्रांसफर होते। ठीक है, ये साइंस है। आई कैन प्रूव दिस, आई कैन प्रूव दिस, ये साइंस के जरिए मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एक आदमी पे बुरा असर कैसा होता, और ये ब्लूटूथ से क्वालिटीज कैसा ट्रांसफर होते। आई कैन प्रूव इट, बट टाइम इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलिए, सेकंड इज लास्ट सेकंड इज मेंटर्स हु आर नॉट इम्प्लीमेंटर्स। अगर आपको खुदा ना खास्ता गलत टीचर मिल गए, ठीक है, टीचर सही नहीं है, तो भी आपको कामयाबी मिलना मुश्किल है। ठीक है, अगर अंग्रेजी में एक मुहावरा है, एक कोट है, इफ ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू डिच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को रास्ता बताए तो दोनों जने गड्ढे में गिरते, है ना। टीचर है मगर इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो वैसे आदमी से भी आपको कामयाबी नहीं मिलती। लास्ट इज गोल्स। देखिए, गोल्स होना भी जरूरी है और क्लैरिटी ऑफ गोल्स होना भी जरूरी है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से पॉइंट्स देखते हुए आइए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया, टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी है, एनर्जी मैनेजमेंट, बहुत एनर्जी है, कोई अच्छा काम कर सकते हैं, फोकस भी है, बुरी सोबत से भी चलो बच गया, अच्छी सोबत में है, मेंटर्स भी अच्छे मिले, मगर वो बंदे के पास गोल नहीं है, करना क्या है दिमाग में है नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इंसान बगैर गोल के नहीं रह सकता। या तो वो अच्छे काम करेगा या तो वो बुरे काम करेगा। इंसान कभी भी खाली नहीं रह सकता। आपको एक लाइव एग्जांपल अभी टेस्ट करेंगे। चलिए, आप लोग कोई चीज सोचना बंद कर दीजिए, अभी कुछ मत सोचिए। पॉसिबल है? नहीं होगा, इम्पॉसिबल। आदमी की रूह निकल गई, बंदा जब मर जाएगा ना, जब ही होगा ये। आदमी खाली नहीं रह सकता। कौन सा भी एक्शन होने से पहले पहले दिमाग में थॉट आता, थिंकिंग क्रिएट होती, तो वो थिंकिंग आती ना, आने के बाद आप एक्शन करते। जैसे कि प्यास लगी, पानी पीना, ऐसा दिल में ख्याल आया, जैसा ख्याल आया आप उठ के एक्शन, यानी यू गो टू द वाटर एंड यू ड्रिंक इट, है ना। तो ये जो थॉट आता, ये शैतान की तरफ से आता अगर हम खाली है तो। अंग्रेजी में और एक कोट है, व्हाट इज दैट? एम्प्टी माइंड इज अ वर्कशॉप ऑफ ए डेविल। कितने लोग ये कोट पहले सुने? कमेंट में बताओ, यस, नो। मेंटर्स, कैन यू रिपीट दिस वंस अगेन? देखिए, ऐसे टीचर मिले जो इम्प्लीमेंट नहीं करते, खुद ही अमल नहीं करते। वैसे लोग की अगर हम रहनुमाई में है तो आपको कामयाबी मिलना मुश्किल मुश्किल है, क्योंकि वो अंग्रेजी का हमने कोड बताया, इफ ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू डिच। इसका माना यह है कि एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को रास्ता बताए तो दोनों जने गिरते, टीचर भी गिरते और स्टूडेंट भी गिरते। आप ये कभी सुना है कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना है? कितने लोग सुने? एम्प्टी माइंड इज ए वर्कशॉप ऑफ ए डेविल। कोई बंदा खाली रहता, उसके दिमाग में शैतानी ख्यालात आते। यस, गुड, है ना। वो अगर कोई बंदे के पास अपने आप को बचा करके ये टोटल ऊपर के 6 कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और वो बंदा कोई गोल नहीं रखा, तो वो पक्का एक बड़ा काम, बड़ा गुनाह कर बैठता। वो इसीलिए कि वहां पर उसको शैतान की रहनुमाई होती। जैसे कि अगर वो बंदा इंटेलिजेंट है, बहुत मतलब टाइम मैनेज भी बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी भी स्ट्रांग है, फोकस भी बेहतरीन है, बुरी सोबत से भी बचा, मेंटर्स भी अच्छे मिले, मगर गोल नहीं है, तो वो बंदा शैतान के हवाले है। जैसे वो बंदा शैतान के हवाले है, वहां पर थिंकिंग आती, फिर उसके बाद वो बंदा अपना जितने भी स्ट्रेंथ है, न्यूरो साइंस टेक्निक की जो भी होशियारी है, वो गलत जगह पे इस्तेमाल होती, और वो बंदा जल्द से जल्द गलती कर बैठता, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी यानी
पूरे क्वालिटीज है उसके कामयाब होने के, मगर उसके पास गोल नहीं है। गोल नहीं है का मतलब करना क्या है, कुछ है नहीं, पक्का शैतान के रास्ते पर चलता। हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट है, 11 पावरफुल गोल्स दैट यू कैन लर्न इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2025 में। 11 ऐसे गोल्स एक आदमी को सीखना चाहिए जो उसकी जिंदगी बदल दे, है ना, वो सिलेबस में है। ठीक है, गोल्स के बाद आपको क्लैरिटी भी होना चाहिए। क्लैरिटी इन गोल्स, उसके अंदर आपको फोकस और फ्लो स्टेट, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये 7 प्रिंसिपल है एक आदमी को कामयाब होने के लिए, नया गोल सीखने के लिए 7 चीजों को अमल करना और जहन में रखना जरूरी है। पहली चीज है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट, तीसरी चीज है एनर्जी मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट बोल सकते हैं, चौथी चीज है फोकस, पांचवी चीज है बैड इन्फ्लुएंस, बुरी सोहबत से बचना जरूरी है, छठी चीज है मेंटर्स हु आर इम्प्लीमेंटर्स, ऐसे मेंटर को फॉलो करना जो इम्प्लीमेंटर हो, लास्ट है गोल्स और क्लैरिटी इन गोल्स। ये 7 चीजों के बाद अगर किसी बंदे के पास है तो वो बंदा कामयाबी हासिल कर सकता और कौन सी भी स्किल बहुत आसानी से सीख सकता। ठीक है, चलिए ये था हमारा बोनस नंबर 1। अब आइए बोनस नंबर 2। आई एम गोइंग टू गिव यू ए मैजिक प्रॉम्प्ट, उसका एक छोटा सा डेमो भी करेंगे। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूं जिसके अंदर आपको कौन सा भी वर्ड डीपर लेवल सीखने में आपको मदद करता हूं। पहले का जमाना गया, जैसे कि डिक्शनरी ओपन करके आप ये वर्ड का माना क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, यानी तो रोमन इंग्लिश की डिक्शनरी निकालते या दूसरी लैंग्वेज के डिक्शनरीज निकालते और चेक करते, वो जमाना गया। अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जमाना है। तो हमारे को भी लर्निंग का स्टाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको अपग्रेड होना जरूरी है। ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं आपको ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, आप ये प्रॉम्प्ट वहां से ले सकते हैं, ये वेबिनार के बाद आपको भेजूंगा। आपका प्रॉम्प्ट शुरू होता है यहां से, गिव मी दिस वर्ड, जो भी ये वर्ड का आपको माना मालूम करना है वो यहाँ पर लिखना वेग की जगह पे। ये प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह है, गिव मी दिस वर्ड मीनिंग डिटेल्स इन द बिलो फॉर्मेट। पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट का यूज करके पहली चीज ये देख रहे हैं कि गिव मी टॉप 3 रूट ऑफ द अबव वर्ड इन बिलो फॉर्मेट। बिलो फॉर्मेट में वो वर्ड का रूट वर्ड मालूम करना, वो वर्ड कहाँ से निकला। देखिए रूट वर्ड पढ़ने का बेहतरीन चीज क्या है बोले तो, आप रूट वर्ड से कोई वर्ड जानेंगे ना, आपकी वो वर्ड का डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता। क्योंकि आप कौन से भी कॉन्फिडेंस स्पीकर्स को देखो, वो लोग की नॉलेज जो है ना बहुत वसी बड़ी रहती, ओके, बहुत बड़ी रहती है, और लोग जस्ट 2% बात करते। कौन सा भी कॉन्फिडेंस स्पीकर्स निकाल के देखिए, वो लोग की वोकैबुलरी बहुत डीप लेवल की रहती। ठीक है, एक वर्ड को लोग अलग अलग अंदाज में यूज करते, वो इसीलिए होता कि वो लोग को रूट वर्ड मालूम रहता, ये वर्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते, ये वर्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए हम पहले वर्ड ये प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट का मतलब क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट का मतलब चैट जीपीटी को हम क्वेश्चन कैसा पूछना। ठीक है, ये 3 रूट वर्ड निकलता जो भी हम वर्ड ऊपर डालेंगे। सेकेंड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा भी वर्ड हम ऊपर जान लेंगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। जैसे ही हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो गया, उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हमको मदद मिलेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, आखिर है क्या वो मालूम होगा। ठीक है, दूसरी चीज है उसके डेफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल। तीसरी चीज है सिनोनिम्स, उसका सेम नेम के दूसरे वर्ड्स क्या है वो पता होता। उसके बाद एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड क्या है वो पता होता। उसके बाद फिफ्थ है गिव मी टॉप 3 कॉमनली यूसेज ऑफ कोलोकेशन एंड कॉमन वर्ड्स पेयरिंग। एम्प्टी वेसल्स मेक मच साउंड, गुड। ठीक है, कॉमन कोलोकेशन यानी वो वर्ड के साथ दूसरे कौन से कॉमनली वर्ड पेयर्स आए वो मालूम होते। ये इसीलिए लाना जरूरी है कि लोग ये वर्ड को किस अंदाज में यूज कर रहे हैं वो पता होता। ठीक है, वेरी पावरफुल प्रॉम्प्ट। छठा चीज है वो वर्ड के 4 सेंटेंसेस बनाना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में और जिरैंड में। जिरैंड क्या है हमारे स्टूडेंट्स को पता है। 7वां रिप्लाई आएगा, गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल इडियम्स फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस विद द वर्ड गिवन अबव।
जो भी हम ऊपर वर्ड दिए उसके इडियम्स मुहावरे है और फ्रेजेस है, फ्रेजेस भी देना, एक्सप्रेशंस देना, तो द गिवन जो भी हम वर्ड ऊपर लिखे उसके हम इडियम्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी से। ये है एक पावरफुल प्रॉम्प्ट जिसका यूज करने से आपको एक वर्ड की डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, एक प्रैक्टिकल देंगे। एनी वन कैन गिव वन वर्ड जिसका माना हम देखेंगे, जो आपको स्पेशली मालूम है ना वो वर्ड। गिव मी ए इंटरमीडिएट लेवल ऑफ वर्ड, नॉट बेसिक वर्ड, नॉट एडवांस वर्ड। एनीवन कैन अनम्यूट एंड से द वर्ड। Professional. Professional. I will consider this as a basic vocabulary. एक काम करेंगे, ठीक है, I'll give you that. Emphasize. Emphasize. ठीक है, emphasize का मतलब anyone? Do you know what is the meaning of emphasize? This comes under intermediate level of vocabulary. है ना? Emphasize का माना क्या है? Implement. नहीं, emphasize का मतलब है कोई चीज पे जोर देना। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि डू नॉट प्ले इन द वाटर, पानी में मत खेलो, यू विल फॉल सिक, आप बीमार हो जाओगे। 3 बार हम किसी चीज को रिपीट करें, यानी एम्फसाइज का मतलब किसी चीज पे जोर देना। जोर देने का मतलब वजन जोर नहीं देना, बार बार ताकीद करना। एम्फसाइज का मतलब जोर देना, किसी बात पे जोर देना। ओके, चलिए ये वर्ड का ये प्रॉम्प्ट यूज करके इसका रिप्लाई कैसा आता देखेंगे। ओके, लेट मी जस्ट कॉपी द प्रॉम्प्ट। यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम गिव मी दिस वर्ड, लास्ट तक आपको कॉपी करना है। ओके, प्रॉम्प्ट कैसा यूज करते हैं वो चीज का एक छोटा सा मैं डेमो दे रहा हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग सेलेक्टेड द एंटायर वन। पहली चीज आपको यहाँ पर वो वर्ड चेंज करना, एम्फसाइज की जगह पे दूसरा वर्ड जो जानना है। उसके बाद चैट जीपीटी में आना, चैट जीपीटी, गो टू चैट जीपीटी। Are you able to see the screen? Yes. ओके, यहाँ पर देखिए हमने ये यूज किया, गिव मी दिस वर्ड एम्फसाइज, सेम हमने कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर हिट एंटर। अब देखिए इसका जवाब कैसा है, बहुत सॉलिड। दिस इज वेरी पावरफुल प्रॉम्प्ट। ओके, देखिए अब ये एम्फसाइज का माना क्या है। पहले इसका रूट वर्ड दिया, ये एक रूट वर्ड है, ग्रीक से निकला, ग्रीक रूट वर्ड है एम्फेनीन। ओके, जिसका माना है टू शो, इंडिकेट और प्रेजेंट क्लियरली। कौन सी भी चीज क्लियरली दिखना, कौन सी भी चीज प्रेजेंट होना क्लियरली, यानी एम्फसाइज में हम खोल के बयान करते हैं, वो बोल रहे हैं। इनका मतलब फेमिनिन, शो का मतलब, एम्फसाइज का मतलब ये है। दूसरा फा, PHAN, फान या फा, ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका माना है टू अपीयर, टू ब्रिंग टू लाइट। कौन सी भी चीज पे हम लाइट डाल करके बताते, या कौन सी भी चीज दिखना, अपीयर होना, छलकना, वहां से फैन का निकला। प्रीफिक्स एम, ये प्रीफिक्स आप लोग हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रीफिक्स का मतलब क्या है और इसका माना क्या होता है। इनटू या इन, हाँ, कौन सी भी चीज अंदर दाखिल करना। कौन सी भी चीज को हम एम्फसाइज करते तो हम जोर देते वो बात पे, और विल ट्राई टू उसके ब्रेन में हम कोई चीज डालने की कोशिश करते, वहां से भी ये रूट वर्ड निकला, एम का मतलब एम्फसाइज। तो ये टॉप 3 रूट वर्ड मीनिंग थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए एम्फसाइज इट्स एक नाउन है जिसका माना है स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू और प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। कौन सी भी चीज पे हम जोर देते, इंपॉर्टेंस देते। ठीक है, एग्जाम्पल है एज ए नाउन, द टीचर प्लेस द ग्रेट एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टडीज। है ना, एक टीचर क्या करे, रेगुलर स्टडीज पे जोर देके स्टूडेंट्स को बोले। यहाँ पर एम्फसाइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर सिनोनिम, इसके और सेम मीनिंग के दूसरे दूसरे वर्ड्स क्या क्या है। स्ट्रेस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वेट, यानी किसी चीज पे वेट देना, अटेंशन, कोई चीज पे तवज्जो दिलाना, हाईलाइट करना कौन सी भी चीज, प्रायोरिटी, यानी कोई चीज पे प्रायोरिटी के साथ बोलना, ये उसका पूरा सिनोनिम है। एंटोनिम देखिए, इनसिग्निफिकेंस यानी अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट द सेकंड, अनइम्पॉर्टेंस, इनसिग्निफिकेंस, नेग्लेक्ट, इन अटेंशन, ये भी प्रीफिक्स से वर्ड निकला, इन अटेंशन, यानी कोई चीज पे तवज्जो नहीं करना। ठीक है, ये थे एंटोनिम्स। अब देखिए टॉप 3 कॉमन कोलोकेशन वर्ड्स पेयरिंग। प्लेस एम्फसाइज ऑन,
ये वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है एम्फसाइज के साथ, यानी कॉमन वर्ड पेयरिंग का मतलब एम्फसाइज का वर्ड दूसरे वर्ड पेयरिंग के साथ क्या, पहली चीज है प्लेस एम्फसाइज ऑन, यानी स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज सेकंड वर्ड, थर्ड है पर्टिकुलर एम्फसाइज ऑन, यानी ये वर्ड वो वर्ड के साथ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा जो कि हम भी अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यूज द वर्ड इन डिफरेंट टेंसेस एंड फॉर्म्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल है, आई प्लेस एम्फसाइज ऑन क्लियर कम्युनिकेशन। पास्ट सिंपल टेंस में शी पुट एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग्स। थर्ड है she will put emphasis on customer satisfaction, future simple tense में। gerundial placing emphasis on discipline help students stay focus, है ना, ये gerund के सेंस में यूज है। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये इसके अंदर क्या है, ले एम्फसाइज ऑन, किसी चीज पे ज्यादा तवज्जो करना, ये एक फ्रेज में इस्तेमाल हो रहा, टू स्ट्रेस और गिव इंपॉर्टेंस टू समथिंग, द कोच लेड एम्फसाइज ऑन टीम वर्क, ये एक फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद है पुट एम्फसाइज ऑन, ये एक दूसरा तरीका है बोलने का, विथ एम्फसाइज टू से समथिंग और डू समथिंग विथ फोर्स और इंपॉर्टेंस, एड एम्फसाइज टू, यानी किसी चीज पे हम जोर देते हैं, यानी ये करीब करीब मिलते जुलते फ्रेजेस है जो कि वर्ड एम्फसाइज से बने हैं, ठीक है। ये था एक प्रॉम्प्ट जिसकी वजह से आप एक वर्ड को डीपर लेवल के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा जो कि मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, गिव मी से कॉपी करना है, लास्ट तक कॉपी करना है, यहाँ पर चेंज करना है, एम्फसाइज की जगह पे कोई दूसरा वर्ड जो आपको जानना चाहते वो वर्ड यहाँ पर टाइप करना, जिससे आपको चैट जीपीटी में पूरा सा डिटेल में जवाब आएगा। या तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में मेटा है, देखिए ब्लू कलर का रिंग आता मेटा, वो भी यूज कर सकते हैं, या तो ग्रूक, डीप सीक, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जनरेटिव एआई टूल्स, वो इस्तेमाल करके आप ये प्रॉम्प्ट यूज करके इंशाल्लाह अच्छे चीजें, पुराना जमाना गया जो डिक्शनरीज में पढ़ने का, ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है जो हम वोकैबुलरी सीखने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूरोसाइंस, एआई प्रॉम्प्ट्स और आपकी प्रैक्टिस, ये तीन कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा सिलेबस बने हुआ है, जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेहतरीन रिजल्ट आया। तीन चीजें हैं हमारे ओवरऑल सिलेबस में। पहली चीज है आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, चैट जीपीटी के थ्रू, यानी एआई प्रॉम्प्ट का यूज करना, और आपको प्रैक्टिस करना, न्यूरोसाइंस टेक्निक है पूरे मिला के, तीन चीजों से हमारा सिलेबस बहुत स्ट्रांग बन गया, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड सिलेबस बन गया, ठीक है। चलिए विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन, दिस फ्री वेबिनार। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी क्लोज हियर? अगर आपको कोई एडमिशंस के रिलेटेड के क्वेश्चंस है, यू कैन विजिट टू आवर इंस्टीट्यूट। और अभी तक यहाँ पर जितने भी ज्वाइनीज है, आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को मतलब ग्रुप में ऐड नहीं है, तो प्लीज ऐड टू अ ग्रुप, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पर पिंग कीजिए, मैं आपको वो ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसके अंदर ऐसे वेबिनार्स आपको एवरी 15 डेज में इंशाल्लाह शेड्यूल करेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर भी वीडियोस आएंगे, और ग्रुप के अंदर आपको ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आएगी, प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, और जितने भी क्वेश्चंस है मेरे को व्हाट्सएप पर आप पिंग कीजिए, ओके। चलिए विद दिस कैन एनीवन गिव मी अ फीडबैक, हाउ इज दिस वेबिनार, गुड, bad? You can give negative feedback or you can give positive feedback. I will try to improve. Even you can unmute yourself if you want to speak, or you can chat, no problem. Either of the way. No questions? We have still 3 minutes. I mean 2 minutes to finish this webinar. आपको ये वेबिनार का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में
मिल जाएगा। चलिए, if you don't have any questions, we can wrap it up here. Thank you so much for joining this webinar. We'll meet again with new topic. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much. Bye bye.